وہ جون کی ایک گرم رات تھی جب گرمی کی ستائی ہوئی ایک فیملی نے ساحل پر پکنک منانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کورنگی سے ایک رکشے میں بیٹھ کر سی ویو پہنچے، ساحل پر خوب موج مستی کی، کھایا پیا، کھیلے کودے، اور جب تھک گئے تو رات گئے گھر لوٹنے لگے۔ لیکن اس فیملی کو نہیں معلوم تھا کہ موج مستی کے بعد اب انہیں دکھ اور تکلیف کا بھی سامنا کرنا ہے، کیونکہ آگے کوئی ان کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے نشے کی حالت میں موجود ہے۔ وہ ڈیفنس فیز 6 میں خیابان حافظ کے ٹریفک سگنل پر پہنچے ہی تھے اور اسے کراس ہی کر رہے تھے کہ سعودی ایمبیسی کی طرف سے آنے والی ایک تیز رفتار ریوو نے سگنل توڑتے ہوئے ان کے رکشے کو اڑا دیا۔ ریوو کے آگے رکشے کی اوقات ہی کیا ہے اور اوپر سے اس کی بے پناہ اسپیڈ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹکر ہوتے ہی رکشے میں سوار افراد اڑتے ہوئے ادھر سے ادھر بکھر سے گئے، کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ رات کا 1 بج چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ موقع پر جمع ہو گئے اور پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ پولیس موقع پر پہنچی، ایمبولینسز منگوائی گئیں اور زخمیوں کو اسپتال لے جایا جانے لگا۔ لیکن اس وقت ہی پتہ چل گیا کہ رکشے میں سوار 48 سالہ صابرہ بی بی اور ان کا 4 سال کا پوتا معیز اس حادثے میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ان کی سانسیں تھم چکی تھیں، جبکہ 3 چھوٹے بچوں سمیت 6 افراد شدید زخمی تھے۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ریوو ڈرائیور کو موقع سے ہی حراست میں لے لیا اور تھانے پہنچ کر حادثے کا مقدمہ درج کر کے اسے باقاعدہ گرفتار بھی کر لیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے حادثات تو اس شہر اور خاص طور پر شہر کے پوش علاقوں کلفٹن اور ڈیفنس میں عام سی بات ہے، جہاں امیر باپوں کی اولادیں سڑکوں پر غریبوں کو ایسے ہی رونتی پھرتی ہیں۔ تو اس کہانی میں ایسا کیا خاص ہے؟ تو جناب، یہ کہانی بہت خاص ہے۔ یہ کہانی ہمارے نظام انصاف کے منہ پر ایک طاقتور طبقے کا ایک زوردار تماچا ہے، اور یہ کیوں خاص ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ پولیس نے ریوو کے ڈرائیور کو جب موقع سے گرفتار کیا تو وہاں موجود لوگوں نے ڈرائیور کے حوالے سے پولیس کو بتایا کہ یہ شخص نشے میں ہے، لیکن پولیس اسے میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال لے جانے کی بجائے تھانے لے گئی، جہاں رات بھر وہ لاک اپ میں رہا، اور صبح جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے 2 افراد کی جان لینے اور 6 کو شدید زخمی کرنے والے ریوو ڈرائیور کو ضمانت پر رہا کر دیا، اور شام ہونے سے پہلے وہ اطمینان سے اپنے گھر بھی پہنچ چکا تھا۔ جبکہ دوسری جانب کورنگی کے ایک گھر سے اس روز 2 جنازے اٹھے، دادی اور پوتے کے۔ اب ذرا اس کہانی میں ٹوسٹ پر ٹوسٹ کے لیے تیار ہو جائیے۔ پولیس نے ریوو ڈرائیور سے حادثے کے بعد جب ڈرائیونگ لائسنس طلب کیا تو اس نے اپنا لائسنس پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے لائسنس برانچ کو خط لکھا، اور جب خط کا جواب آیا تو پتہ چلا کہ ڈرائیونگ لائسنس جعلی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں اس لائسنس کا کوئی اندراج ہی نہیں تھا۔ پولیس کے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس کیس میں غفلت اور لاپرواہی سے بلا لائسنس گاڑی چلاتے ہوئے قتل کرنے کی دفعہ کا بھی اضافہ کرے، جو کر بھی دی گئی۔ اور اسی دوران یہ بھی پتہ چلا کہ ریوو اس ڈرائیور کے نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک تو کوئی اور ہے، جس پر پولیس نے ریوو کے مالک کو بھی اس مقدمے میں ملزم نامزد کر دیا۔ قانون کے مطابق کوئی شخص اگر کسی ایسے شخص کو جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو اگر اسے اپنی گاڑی چلانے کے لیے دیتا ہے اور اس سے کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ نتاشا کیس تو آپ کو یاد ہوگا ہی۔ نتاشا نے جس گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار باپ بیٹی کی جان لی تھی، وہ گاڑی اس کے شوہر کے نام پر تھی، جس پر اسے بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ نتاشا کے شوہر کو گرفتار کیا جاتا، اس نے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تھی، اور کچھ ایسا ہی اس کیس میں بھی ہوا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اب تک ریوو ڈرائیور اور اس کے مالک کا نام کیوں نہیں بتایا۔ کچھ دیر اور ٹھہریے، بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ آگے کیا ہوا۔ یہ حادثہ جو ریوو ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کی وجہ سے سانحے میں بدل گیا، 14 جون 2019 کو ہوا تھا، یعنی تقریباً 6 سال پہلے۔
गिजरी पुलिस को इस ओपन एंड शट केस की तफ्तीश में भी 4 माह लगे और 4 माह बाद जब पुलिस ने इस केस का चालान, और वो भी अबूरी चालान, अदालत में पेश किया तो अदालत को बताया गया कि पुलिस गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और वो इस केस में मफरूर है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में मफरूर इस शख्स ने इस हादसे के कुछ दिन बाद ही अपनी गाड़ी पुलिस कस्टडी से वापस लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी और उस दरख्वास्त पर जब अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा था तो गिजरी पुलिस का ही एक ऑफिसर अदालत में पेश हुआ था और उसने नो ऑब्जेक्शन किया था और उसी नो ऑब्जेक्शन पर 18 जुलाई 2019 को अदालत ने रीवो मालिक के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया और मालिक ने गाड़ी थाने से वसूल भी कर ली। ये ऑर्डर भी बहुत अजीब है। इस पर जज के दस्तखत के नीचे 7 मई 2019 की तारीख कलम से लिखी हुई है और ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये फैसला 18 जुलाई 2019 को सुनाया गया। इस केस में इतनी जाली बातें सामने आई हैं कि ये ऑर्डर भी जाली लगता है। खैर, अभी असल कहानी पर आते हैं। एक्सीडेंट केस काफ़ी अरसे अदालत में ज़ेरे समात रहा। एक आध पेशी पर रीवो ड्राइवर अदालत में पेश भी हुआ, लेकिन बाद में वो गायब हो गया। अदालत ने उसके वारंटी गिरफ्तारी जारी किए और जब पुलिस उसे गिरफ्तार ना कर सकी तो अदालत ने ना सिर्फ उसे इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया बल्कि नादरा को उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म भी दिया। लेकिन पुलिस उस इश्तिहारी मुलजिम को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। हालांकि मौके तो पुलिस को बहुत मिले और ये कब मिले ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इस केस में आगे जो हुआ वो उन अफराद के लिए बहुत अहम है जिनके प्यारे इस शहर में तेज़ रफ्तार ट्रक, डंपर्स और ट्रेलर्स के नीचे आकर कुचले गए हैं और वो आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और हादसे के जिम्मेदार ट्रक, डंपर्स और ट्रेलर ड्राइवर्स जमानत पर रिहाई के बाद शहर की सड़कों पर एक बार फिर मौत बनकर घूम रहे हैं। इस केस में मुतासरा फैमिली को जब क्रिमिनल केस में इंसाफ नहीं मिल सका तो उन्होंने अदालत में 2 अलग अलग मुकदमात दायर कर दिए और ये मुकदमात थे हरजाने के। हरजाने के मुकदमात का अपना एक अंदाज़ होता है और इस केस में भी वही अंदाज़ अपनाया गया। अदालत से कहा गया कि 4 साला मुइज़ अभी मज़ीद कम से कम 68 साल जी सकता था। वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता था ताकि अपने बहन भाइयों और वालिदैन की जिम्मेदारी उठा सके और उन्हें एक आरामदेह और पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। हरजाने के केस में दावा किया गया था कि मुइज़ जब अमली ज़िंदगी में कदम रखता तो उसकी आमदनी भी अच्छी होती। उसकी मुस्तकबिल में माहाना आमदनी का अंदाज़ा अगर सिर्फ 30,000 रुपये भी लगाया जाए तो ये 68 साल में 2,31,20,000 रुपये बनते हैं, जिससे गाड़ी के मालिक और ख़ास तौर पर ड्राइवर की गैर जिम्मेदारी की वजह से मुइज़ की फैमिली महरूम हो गई है। केस में यह भी कहा गया था कि मुइज़ के इस अंदाज में अचानक मौत से उसके वालिदैन न सिर्फ बेटे से महरूम हो गए बल्कि उन्हें शदीद ज़हनी दबाव का भी सामना करना पड़ा है और गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को इस मद में भी 7 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दिया जाए। मजमूई तौर पर 9.5 करोड़ रुपए हरजाने का मुकदमा दायर किया गया और ये मुकदमा 6 साल अदालत में चलता रहा और बिलाखिर चंद माह पहले सितंबर 2025 में अदालत ने इस पर अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने गाड़ी के मालिक पर तो कोई हरजाना नहीं किया, अलबत्ता ड्राइवर के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए की डिक्री जारी कर दी और साथ ही ये भी हुक्म दिया कि जब से ये केस फाइल हुआ है उस वक्त से सालाना 12% के हिसाब से इस रकम पर मुनाफा भी दिया जाए। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मुतासिरा फैमिली ने हरजाने के 2 अलग अलग केस फाइल किए थे, तो दूसरा केस साबरा बीबी की मौत के हवाले से दायर किया गया था और उस केस में अदालत 2022 में गाड़ी के मालिक और ड्राइवर दोनों के खिलाफ ही हरजाने का केस मंजूर करते हुए तकरीबन 90 लाख रुपए की डिक्री जारी कर चुकी है। ऐसे फैसले अगर डंपर्स, ट्रक्स और ट्रेलर्स के नीचे कुचल कर मरने वाले शहरियों के केसेस में आने लग जाएं तो यकीनन मौत बनकर दौड़ती इस हैवी ट्रैफिक को लगाम डालना मुमकिन हो जाएगा और इस शहर में हादसात में बहुत कमी आ सकती है। लेकिन मसला यही है कि यहाँ अदालती फैसलों पर अमल दरामद ही नहीं होता और कुछ ऐसा ही अब तक इस केस में हो रहा है।
साबरा बीबी की मौत पर हर्जाने की डिक्री जुलाई 2022 में जारी हुई थी और मुइस की मौत पर सितंबर 2025 में जारी हो चुकी है। लेकिन ना तो गाड़ी का मालिक और ना ही ड्राइवर इस अदालती फैसले पर अमल कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने स्टेट बैंक से उनके अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। और मज़े की बात यह है कि रीवो ड्राइवर के सारे बैंक अकाउंट खाली पड़े हैं। हालांकि वो कोई मामूली आदमी नहीं है और मामूली तो रीवो का मालिक भी नहीं है। रीवो का मालिक है सैयद अरशद इसरार शाह, जिसके बारे में ज़राए बताते हैं कि वो इस वक्त मुल्क में अहम तरीन आइनी मनसब पर विराजमान शख्सियत का माजी में पर्सनल गार्ड रहा है। और रीवो का मालिक है रमेश कुमार। रमेश कुमार सिंध का एक मारूफ बिजनेसमैन है और आपको 2023 में होने वाली सिंध प्रीमियर लीग तो याद होगी ही, जिसे सिंध हुकूमत ने सरकारी सरपरस्ती में लेते हुए उसे अपना अहम तरीन कारनामा करार दिया था। रमेश कुमार उस प्रीमियर लीग का एडवाइज़र था। 2023 में सिंध प्रीमियर लीग के इफ्तिताह के मौके पर जब सिंध के सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इसका इफ्तिताह किया, तो उस इफ्तिताही तकरीब और इसी सिलसिले की एक तकरीब जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे, उन दोनों मौक़ों पर यह इश्तिहारी मुलजिम भी वहाँ मौजूद था। अब आप समझ गए होंगे कि रीवो के ड्राइवर रमेश कुमार और मालिक सैयद अरशद इसरार शाह के पीछे कौन सी ताकतें हैं जो वो 2 अफराद के कत्ल केस में कभी गिरफ्तार नहीं हुए और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के बावजूद अपनी माली सरगर्मियां भी जारी रखे हुए हैं। वो अदालतों के फैसलों पर अमल करने के लिए भी तैयार नहीं हैं और शायद अदालतों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, जो अदालतों में अपने खिलाफ दायर केसेस में पेश भी नहीं होते। और दूसरी जानिब वो गरीब मुतासिरा फैमिली है जिसके 2 अफराद, दादी और पोता, उनकी गलती से अपनी जान से गए। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले इस केस के मुद्दई यानी साबरा बीबी के बेटे मोहम्मद वक़ास से बात की तो मैं लरस कर रह गया। उस शख्स ने इंतहाई मायूसी से बताया कि उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल सका और चंद माह पहले साबरा बीबी के शोहर ग़ुलाम मोहम्मद भी इंसाफ की राह तकते तकते इंतकाल कर गए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुल्ज़िमान को सज़ा मिले, उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने उनके प्यारों की जान ली है, लेकिन उन्हें इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। वक्त भी काफ़ी ज़ख्म मुंदमिल कर देता है। 6 साल पहले इस हादसे में शदीद ज़ख्मी होने वाली मोहम्मद वक़ास की बहन युसरा नाज की पिछले ही महीने शादी हुई है। अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाली युसरा नाज इस हादसे के बाद कई माह तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रही थी, लेकिन उस दौरान भी मुल्ज़िमान रमेश कुमार या सैयद अरशद इसरार शाह ने उनकी कोई मदद नहीं की। इस केस में अच्छी बात अदालतों के फैसले हैं जो मुतासिरा फैमिली के हक़ में आए हैं। अब अदालतों ने ही अपने इन फैसलों पर अमल भी कराना है, जिसके लिए मुतासिरा फैमिली की जानिब से फराज फ़हीम एडवोकेट अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। वो रोड एक्सीडेंट में मर जाने वालों की तरफ से हर्जाने के केसेस फाइल करने की शोहरत रखते हैं और सिर्फ यही केस नहीं, शहर में तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से जाँ बहक होने वाले कई शहरियों के वर्सा की जानिब से हर्जाने के केसेस उन्होंने अदालतों में दायर किए हुए हैं। ये प्रोग्राम उन अफराद के लिए एक मैसेज भी है जिनके प्यारे किसी रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हुए और उन्हें क्रिमिनल केसेस में इंसाफ नहीं मिल सका और उन्होंने अपना मामला अल्लाह की अदालत पर छोड़ दिया है। वो चाहें तो इस दुनिया में भी अपना केस लड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे साबरा बीबी और नन्हे मुइस का केस लड़ा गया। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रमज़ान का बाबरकत महीना है। इस महीने में अगर आप ज़कात और फ़ितरा निकालें तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को ज़रूर याद रखिएगा, जो ज़िंदगी के कई शोबों में अवामी खिदमत की आला मिसाल बना हुआ है। देखते रहिए FIR।